یہ شاہراہ دستور یعنی ڈی چوک کے سامنے کی شاہراہ ہے۔ سپریم کورٹ کے عین سامنے گو قاضی گو کے نعرے لگ رہے۔ یہ لوگ بریانی کھانے کے لیے نہیں نکلے، یہ لوگ شاہراہ دستور پر ڈی چوک کے مقام پر پہنچ کیسے گئے جہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا، لاٹھی چارج ہوتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں۔ آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسی حکومت جس کے ہوتے ہوئے پرندہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں پر نہیں مار سکتا، اس کے ڈی چوک میں یعنی شاہراہ دستور کے سامنے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گو قاضی گو کے نعرے لگ رہے ہوں۔ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسی حکومت جس کے ہوتے ہوئے پنڈی سے آگے کوئی بھی احتجاج کرنے والا نہیں نکل سکتا تھا، کبھی آنسو گیس کی شیلنگ، واٹر کینن کا استعمال، گرفتاریاں، تشدد، لاٹھی چارج، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈی چوک میں پہنچے اور قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ کیس انتہائی سینسٹیو ہے، حساس ہے، لیکن کیونکہ اس کا فیصلہ قاضی صاحب کے نوکے قلم سے آ چکا ہے تو انہی کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں حکومت، اپوزیشن اور وہ جو سارا نظام چلاتے ہیں سب ایک پیج کے اوپر ہیں، تو قاضی صاحب اب نہ ہی سمجھیں یہ کہانی کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ تفصیلات میں نے شیئر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ ان خدشات کا اظہار یا خطرات کا اظہار ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کے دوران کیا۔ ایسا کیا ہے؟ کیا یہ خطرے کا اظہار پہلی دفعہ کیا گیا؟ اس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نہیں کر چکے تھے؟ اس کی ڈیٹیل بھی میں نے شیئر کرنی ہے۔ صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے روبرو پیش ہوئی تو انہیں 1 ماہ ڈیٹین کرنے کے احکامات جاری ہوئے، اور وہاں سے وہ بچ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئی اس کی ڈیٹیلز کیا وہ شیئر کروں گا۔ کراچی کے کارساز روڈ کے اوپر ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک امیر زادی نے 5 لوگوں کو کچل دیا، 4 لوگ مبینہ طور کے اوپر جاں بحق ہو چکی ہیں۔ سسٹم ہمارا اس کے اوپر کیا کہتا ہے اس کی ڈیٹیل کیا وہ شیئر کروں گا۔ کچھ وائرل ٹویٹس اور پھر کچھ وائرل بیانات، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے، انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ سبسکرائب کر لیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا آل ویڈیو کا چیک مارک آن کر لیجیے گا، زیادہ زیادہ کامنٹس کرنے تاکہ مس فائر وال یا مس فائبر وال چشمے والی سرکار اس کا جو معاملہ ہے وہ ڈاؤن ہو سکے، آپ ہمارے درمیان انٹریکشن ہو سکے۔ ویڈیو ڈسکرپشن میں چینل لنک موجود ہوتا ہے، اس کو کلک کریں، جوائن کریں۔ ویڈیو کا اگر نوٹیفیکیشن یہاں نہیں ملتا تو وہاں مل جایا کرے گا۔ اس طرح سے آپ اور ہمارے درمیان ایک معاملہ گفتگو کا وہ جاری رہے گا۔ ٹاپ سٹوری آف دی ڈے، 24 گھنٹے کی سب سے بڑی خبر، ویسے تو بہت ساری ہیں، وہ شام میں شامل کروں گا، اور ایک ایسی خبر بھی شام میں شامل کروں گا جو آپ کو ہلا کے رکھ دی، ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ہے، تو اس لیے شام والا ولاگ بھی بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہیں یہ توقع ہے کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع مل جائے گی، ایک ایسی حکومت جو خود چاہتی ہے کہ قاضی صاحب کو یہ مدت ملازمت میں توسیع مل جائے اور ان کی سہولت کاری بھی بھرپور ہو رہی ہو، ایک ایسے پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ آپ لاکھوں کہیں تو کم نہ ہوگا، تعداد میں لوگ شاہراہ دستور کے اوپر اینڈ سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں اور گو قاضی گو کے نعرے لگاتے ہیں۔ کیس بڑا سینسٹیو ہے، ناموس رسالت کا کیس ہے اور ناموس دین اسلام کا کیس ہے، تحریف قرآن پاک کا کیس ہے۔ اس کیس کے اندر قاضی صاحب فیصلہ آلریڈی دے چکے ہیں، ان کو یہ چتاونی دے دی گئی ہے، اور صحافی حضرات جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ آلریڈی قاضی صاحب سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس فیصلے کو یا تو آپ واپس لیں یا خیال رکھیں کہ آپ نے ایسا کیا کر دیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ایسی حکومت جس کے ہوتے ہوئے لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، لوگوں کی گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ اور انہیں ریڈ زون میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہو، اس حکومت کے ہوتے ہوئے قاضی صاحب کے بلڈنگ یعنی سپریم کورٹ کے عین سامنے گو قاضی گو کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں، یہ خود سے تو نہیں ہو سکتا، پہلی بات یہ ہے۔ اور پھر وہ پنڈی سے آگے تک تو آنے نہیں دیتے تھے، تو یہاں پر یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی 2-3 ریزن ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاضی صاحب جو اب تھوڑا پرو رائٹ ہوتے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اپیرنٹلی ان کے اوپر پریشر بڑھایا جائے کہ تسی چیز کی ہو، یہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا، تمام وہ حلقے جو حکومت کے ساتھ بھی ملے ہوئے
हुकूमत की सहूलत कारी करते हैं और फिर अपोजिशन, क्योंकि एक मामला रिलीजियस है, इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं और काजी साहब को ये कहें कि बस अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आप घर जाने की तैयारी कर लें। ये एक मैसेज हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि आने वाले चंद दिन में हालात पलटा खा जाएं, यानी दिसंबर से पहले पहले, और पता ये चले कि काजी साहब भी चले गए, इनके सहूलतकार भी अब पीछे हट गए हैं और इमरान खान साहब जो है दे दनादन धन वापस आ रहे हैं। तो उसके लिए राह हमवार करने का ये रास्ता हो सकता है। केस बड़ा सेंसिटिव है, केस बड़ा हसास है, और इस तरह के हसास केसेस में जिद नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि एक ऐसा मामला जिसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट यूनानिमसली एक करारदाद भी पेश कर चुकी हो, मामलात को बड़ा डीपली भी देख चुकी हो, उसके ऊपर काजी साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया है, तो अब उसको नतायज भुगतने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस सारे मामले की जो टाइमिंग है वो बड़ी क्रूशल है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह होना, मेरी नाकिस राय में और दानिस्त में, मुझे ये चीज क्लियरली दिखाता है, ये मेरी इंसाइट है कि काजी साहब यानी जी का जाना ठहर गया, इस गवर्नमेंट का भी जाना ठहर गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब देख रही है कि बचा तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं, कम से कम ये रिलीजियस कार्ड अपने अगेंस्ट ना कर बैठे, तो इसलिए वो भी इस सारे मामले के अंदर साथ दे रहे हैं। और फिर जो सहूलतकारी हो रही थी वो भी शायद लगता है कि अब काजी साहब के बस से बाहर निकल चुकी है, तो हालात उनके बड़े मुख्तलिफ हैं। ये तो टॉप स्टोरी थी। सेकंड टॉप लीड, कप्तान की जान को शदीद खतरा है। इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज एक मीडिया टॉक की, आप कह सकते हैं कि व्लॉगर को गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पता है कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की पूरी पूरी तैयारी कर ली गई। अब एलिमिनेशन जो है, दिस इज नॉट अबाउट हिज पॉलिटिकल एलिमिनेशन, वो तो ऑलरेडी कोशिश करके देखी जा चुकी है जो कि नहीं हो सकी, तो वो उनकी लाइफ लॉन्ग एलिमिनेशन की बात कर रही हैं, यानी खुदा न खास्ता उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है उन्हें मारने की, वो ये कहना चाह रही हैं। तो इस खदशे का इजहार तो इमरान खान साहब ने खुद जब वो जेल से बाहर थे, जमान पार्क के अंदर मौजूद थे, उस वक्त भी किया था कि मुझे मारने की कोशिश करेंगे। फिर उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद जब बुशरा बीबी जमान पार्क अरे बनी गाला चली गई, तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात का क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है। फिर अलीमा खान साहिबा ने अब ये बहुत बड़ा दावा किया, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ना सही, बहरहाल पार्शल इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, उसको बैठ जाना चाहिए कि एक साबिक वजीर आजम की हमशीरा इतना बड़ा दावा कर रही हैं, खदशे का इजहार कर रही हैं, उसको चेक होना चाहिए। तो इसके मुकाबले में तो फिर जो ट्रू डेमोक्रेसीज हैं, लाइक द डेमोक्रेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर ट्रंप के ऊपर एक छोटा सा हमला हुआ, उसके ऊपर जो इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर्स थी वो रिजाइन कर गई सवाल जवाब के ऊपर। आप हालात देखिए ना, और उन्हें सेफ गार्ड करने का पूरा पूरा ठेका जो था वहां की यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी फोर्स ने लिया हुआ था। तो ये बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। कोई अगर नहीं समझ पा रहा तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज आलिया हमजा मलिक साहिबा और सनम जावेद खान साहिबा, इन दोनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। तो उधर जो है अहकाम ये जारी हुए कि उन्हें 1 माह के लिए नजर बंद कर दिया जाए। तो उसके बाद हो सकता था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता या हिरासत में ले लिया जाता, लेकिन बड़ी कमाल महारत से वकला ने सनम जावेद और आलिया हमजा मलिक दोनों को वहां से सेफ एग्जिट दिया और निकाल के ले गए। तो बड़ी मुश्किल से इन दोनों की बचत हुई है, लेकिन हालात मुल्क के ऐसे हैं कि इसमें कोई भी अगर कानूनी रास्ता भी अपना कर जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ ये वाला सलूक किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। ये मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। ये खातून एसयूवी राइडर की पिक्चर है। ये खातून इनका ताल्लुक कराची से है। कराची में गुल अहमद एनर्जी, मुबैना तौर के पर गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन दानिश इकबाल की ये अहलिया है। इनका नाम नताशा दानिश है। इन्होंने मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्टेडली शराब और ड्रग्स के नशे में धुत होकर कारसाज रोड पर अपनी प्रॉडो से 5 लोगों को कुचल दिया। एक बाइक भी थी, उस बाइक के ऊपर एक वालिद बुजुर्गवार और उनकी साहबजादी, उन दोनों का मैं नाम ये देता हूं, आमना आरिफ और उनके वालिद, ये दोनों शामिल थे। आमना जो है वो MBA की स्टूडेंट थी। उनको कुचला तो वो दोनों मौके पर जाँ भाग हो गया। इसके अलावा 2 और शख्सियात जाँ भाग हो गई हैं। ये खातून एक पैसे वाले शख्सियत की अहलिया है। इन्हें जिस तरह से पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है, ये भी हमें नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम कानून है। इसके अंदर पैसा जब चलता है तो वो बहुत सारे झाड़ू फेरते हुए लोगों को बचा लेता है। हमने शाहजेब कत्ल केस देखा और बहुत सारे मामला देखे। ऐसे केसेस में अगर स्टेट भी मुद्दई बन जाए तो भी ऐसे लोगों को बचाने में ये अपना किरदार अदा करता है। मामला ये सिर्फ नहीं है कि ये खातून है तो इसलिए इनको क्लीन चिट दी जाए। मामला ये है कि ड्रग्स
या जो अल्कोहल का यूजेज है वो इतना बढ़ चुका है कि हमारी नौजवान नस्ल हत्ता के ख्वातीन को भी नहीं बख्श रहा, और वो शराब के नशे में धुत ताकत को इस तरह से मिस यूज करते हैं कि वो किसी को रगड़ दें, कुचल दें, मार दें, उसके बाद उनके पास क्लीन चिट पूरी होती है। आपको याद होगा कशमाला तारिक साहिबा के साहबजादे ने या इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे के ऊपर 4 लोगों को कुचल दिया था, बाद में उनकी सेटलमेंट हुई, पैसे दे दिलाकर जान छूट गई। हो सकता है इस केस में भी ऐसा हो, और गुर्बत इतनी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पैसा आपको लाइसेंस टू किल तो नहीं दे देता कि आप सोचे समझे के बगैर किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दें और चढ़ाकर निकल जाएं। तो इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर सोसाइटी को वेकअप, एक आध शख्स को तो आपको तख्तेदार पे लटकाना पड़ेगा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, तो उसके बाद शायद लोग जो है ये जुर्रत ना कर सकें। एक और टॉप स्टोरी वो ये कि इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अडयाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया, इसमें ख्वातीन भी शामिल थी। नेक्स्ट जो टॉप स्टोरी है वो है फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के हवाले से। हामिद मीर साहब की दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर समाअत हुई, तो पीर 26 अगस्त तक इस पर जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की दरख्वास्त पर समाअत की। पिटिशनर की जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है, इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुताल्लिक है, पता तो चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। इससे मुताल्लिक पीटीआई से पूछें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि पीटीआई इस मामले पर खामोश है। चीफ जस्टिस ने पूछा सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी में किसको बुलाएं। ईमान मजारी ने कहा कि जो हाईएस्ट ऑफिस है उसको बुलाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको बुलाएंगे जिस मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफिंग कर सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दिया। यह हामिद मीर साहब का केस था। अब आप अंदाजा कीजिए कि 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान पंजाब हुकूमत ने किया, लेकिन आज अखबारात के जो फ्रंट पेजेस हैं देख सकते हैं आप, ये भरे हुए हैं करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देकर 14 रुपए को जस्टिफाई किया गया। इससे घटिया कैंपेन कोई नहीं हो सकती। इसके हम अगेंस्ट थे। इसी को आप तशहीरी कल्चर, प्रोटोकॉल कल्चर, दोस्ताना कल्चर और पता नहीं क्या कहते हैं। शाम का जो व्लॉग होगा उसमें मैं आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो देखकर आप हिल जाएंगे, जिसमें एक खातून ने मरियम नवाज के सामने, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के सामने उनको धोकर रख दिया कि आपने कायद आजम और अल्लामा इकबाल को भी पीछे छोड़ दिया और आपने अपनी हैसियत से निकलकर यह काम कर दिया। वो क्या है, वो शाम वाला व्लॉग आपने बड़े गौर से देखना है। मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं, जैसे औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि जज अमीनुद्दीन खान साहब के कमेंट्स के ऊपर कल जो फैसला आया था उसके ऊपर वो कहते हैं ऐसे अक्लमंद और ज़हीन जज सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। काश इनके घर का कोई फर्द इनके सामने ऐसी दरख्वास्त लेकर आए, कहे कि आपके साथ गुजारे निजी जिंदगी के लम्हात को रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाता है, और आप उससे कहें चुप कर जाओ, मुझे तो तुम पर ही शक है, मुझे तो तुम पर ही शक है। ये औरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट है। आगे चलते हैं। एक और तराशा है, बड़ा वायरल हो रहा है, यह आज के अखबारात का तराशा है कि रोजगार की अदम फराहमी नौजवानों को सियासी एडवेंचर पर उभार सकती है। यह एक सर्वे रिपोर्ट है कि रोजगार की अदम फराहमी नौजवानों को सियासी एडवेंचर पर उभार सकती है। मुल्क की 64% आबादी की उम्र 30 साल से कम, बेरोजगारी की शरह 6.3% है। सालाना 1 मिलियन मुलाजमतें पैदा करना, मईशत का 6% सालाना की शरह से तरक्की से गुजरना नागुज़ीर है। इसके ऊपर कमेंट करते हुए साबिर शाकिर साहब कहते हैं यानी में बांग्लादेश तर्ज का इनकलाब आ सकता है, लोग अब एडवेंचर की तरफ जाने का सोच रहे हैं। साबिर शाकिर साहब कह सकते हैं नौजवान हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, बेचैनी है कि बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको तराशा पहले दिखाया था कि 14 रुपए फी यूनिट कमी करने को जस्टिफाई करने के लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अखबारात और टेलीविजन चैनल्स को दे दिए गए। इसको कोट करते हुए इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि 14 रुपए का रिलीफ, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात। हम किस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं जिसमें लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि अपने तशहीर की खातिर आप लोगों की जेबों से पैसा निकालते हैं, उसको तशहीर पे लगाते हैं और उसमें आटे में नमक के बराबर या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर रिलीफ देकर आप कहते हैं कि ले हमने तो आपको बड़ा रिलीफ दे दिया है। इससे बड़ा शर्म का मुकाम नहीं हो सकता। मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। शाम का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।